کہانی کی شروعات میں ہمیں جیونگ نام کی ایک عورت کو دکھایا جاتا ہے جو جلدی سے کوکنگ کرنے کے بعد گھر کی صاف صفائی کرتی ہے اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے روم میں جا کر اس کے کھلونوں کو اس کی جگہ پر رکھتی ہے۔ اب وہ تھکن سے چور ہو گئی تھی اور کچھ دیر ریلیکس کرنا چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی آواز اسے آتی ہے۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس کے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کر پارک میں جاتی ہے اور تھوڑی دیر ریلیکس کرنے کے لیے کافی منگواتی ہے اور پیتی ہے۔ وہیں پر وہ 3 جوان لوگوں کو دیکھتی ہے جو اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی لائف کتنی کمفرٹیبل ہے، مجھے تو اس سے جیلسی ہو رہی ہے۔ آرام سے اس کا شوہر کما کے لے آتا ہے اور یہ آرام سے بیٹھ کر کھاتی ہے۔ اسے یہ سب کچھ بہت ہرٹ فل لگ رہا تھا کیونکہ وہ سارا دن بزی رہتی ہے۔ اب پارک سے گھر آنے کے بعد وہ کچھ کام کر رہی تھی کہ تبھی اس کی بیٹی رونے لگتی ہے۔ وہ اسے کھانا کھلاتی ہے اور اس کے بعد اس کے کپڑے چینج کرتی ہے اور پھر وہ اسے نہلاتی ہے۔ اس طرح سے وہ بہت زیادہ بزی ہو چکی تھی، لیکن خوش نصیبی سے اس کا شوہر بہت سپورٹیو تھا۔ وہ آج آفس سے جلدی آ کر اپنے بیبی کو سنبھالنے لگتا ہے اور اتنے میں جیون کھانا لگاتی ہے۔ اب ہیون ڈنر کرنے لگتا ہے، لیکن جیون کو اپنے سے پہلے اپنی بیٹی کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ ہیون کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیون کی ریسٹ میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے آرام کرنا تھا، لیکن گھر میں اتنی زیادہ کام ہونے کی وجہ سے وہ آرام نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کا ریسٹ ہیل نہیں ہو رہا تھا۔ وہیں پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے، اسی طرح گھر کے دوسرے کاموں کے لیے دوسری مشین ہے، تو تمہارا ریسٹ کیوں نہیں ہیل ہو رہا؟ اب ڈاکٹر کو کون سمجھائے کہ مشین لمیٹڈ کام ہی کر سکتا ہے۔ وہ ایک بچی کو اٹھا کر کھانا نہیں بنا سکتا، نہ ہی اس سے نہا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کھلا سکتا ہے۔ خیر تبھی نیون کہتا ہے کہ اس دفعہ ہم نیو ایئر پہ پیرنٹس کے گھر نہیں جائیں گے اور گھر پر ہی ریلیکس کریں گے کیونکہ میں بہت تھک چکا ہوں۔ جس پر نیون کہتی ہے کہ میں سارا دن گھر کا کام کرتی ہوں اور تھک تم چاہتے ہو، اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کیونکہ تمہاری موم کو لگے گا کہ میں نے تمہیں ان کے پاس جانے سے روکا ہے۔ نیکسٹ سین میں جیونگ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے ان لاس کے گھر چلی جاتی ہے، لیکن وہاں بھی اسے کچن کے کاموں سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ اس کی ساس ڈھیر سارے ڈمپلنگ بنانے میں جٹ جاتی ہے جس سے بہت سارے برتن بھی گندے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ سارے برتن جیون کو ہی دھونے پڑیں گے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ برتن دھلوانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب جیون کو بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں دھو لوں گی، لیکن تب تک اس کی ساس ٹونٹ کرنے لگتی ہے کہ سارا کام میرے بیٹے سے کرواتی ہو، جس پر جیون کہتی ہے کہ موم گھر میں سارا کام خود ہی کرتی ہوں، وہ تو چھٹیاں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہیلپ کروا رہا ہے، کیونکہ اس کی موم کو لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا گھر میں بھی جورو کا غلام بن کے سارا کام کرتا ہے۔ ابھی رات کو جیونگ سو رہی ہوتی ہے کہ اسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے۔ وہ کچن میں جا کے دیکھتی ہے تو اس کی ساس کوکنگ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ارے تم اتنی جلدی کیوں جاگ گئی؟ لیکن ساس کام کر رہی ہو اور بہو سو رہی ہو یہ اچھا تھوڑی لگتا ہے، اسی لیے وہ ان کے ساتھ کام کروانے لگتی ہے۔ یہ جب سارا کام ختم کر لیتی ہیں تو ان کے پتی اٹھ کر لان میں آ جاتے ہیں۔ جیون اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کے ڈیڈ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی ساس بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن جیون ابھی بھی کچن میں کام کر رہی تھی۔ تبھی ہیون کی سسٹر اپنے پتی کے ساتھ آتی ہے اور وہ سب لوگ ہی خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن جیون ابھی بھی کام میں ہی مصروف تھی۔ اب جیون کو ان کی ہنسی کھلنے لگتی ہے۔ اچانک وہ اپنے ایپرون اتار کر اپنی ساس سے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ جیون تھوڑا آرام کر لے تو اسے اس کے گھر بھیج دو۔ نیو ایئر پر جیسے تم اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوئی ہو، اسی طرح میں بھی اپنی بیٹی کو مس کر رہی ہوں۔ وہ سبھی یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اچانک سے جیون یہ کیسی باتیں کر رہی ہے کہ جیسے جیون کے اندر اس کی موم کی آتما آ گئی ہے، لیکن اس کی موم تو ابھی بھی زندہ تھی۔ تبھی ہیون اپنی ڈاٹر کو اٹھا کر انہیں کہتا ہے کہ میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں یہ سب آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا۔ پھر وہ اپنی وائف کو لے کر اس کے میکے چلا جاتا ہے جہاں پر وہ زیادہ سوتی ہی رہتی ہے اور پھر وہ اسے اپنے بچپن کی یاد آتی ہے جہاں وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی دادی آ کر اسے کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو اتنا زیادہ ہنسنا کھیلنا نہیں چاہیے۔ ساتھ ہی جیونگ کی موم کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھی، اس وجہ سے بھی اس کی دادی اسے سنایا کرتی تھی کہ بیٹیاں تو شادی کے بعد سسرال چلی جاتی ہیں، تمہیں اور بیٹے پیدا کرنے چاہیے تاکہ وہ تمہیں تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن سکیں۔ سین اب پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے جہاں پر جیون کو اپنے بھائی کی پرانی پین مل جاتی ہے۔ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کے ڈیڈ جب لندن کے ٹرپ پہ گئے تھے تو واپس آ کر وہ اپنے بیٹے کے لیے یہ پین لائے تھے اور اسے بھی وہ پین چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے بھائی سے 10 سال سے وہی پین مانگ رہی تھی لیکن وہ اسے نہیں دے رہے تھے۔ اب وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں تو وہ اپنے شوہر ہیون سے پوچھتی ہے کہ ہر سال تو تمہاری موم کھانے کا بہت سا سامان پیک کر کے دیتی تھی، اس دفعہ کچھ نہیں دیا۔ دراصل جو کچھ اس نے سسرال میں کیا تھا وہ سب بھول چکی تھی۔ اس
पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम असल में भूल चुकी हो, मैंने ही अपनी मॉम को खाना देने से मना किया था। जब से तुमने बेबी को जन्म दिया है तब से तुम चीजें भूलने लगी हो। और तुम्हें पता है हमारे ऑफिस में मेरे एक कुलीग की बीवी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, तो उसके बाद से उसे याददाश्त खोने की बीमारी होने लगी, तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास गई। हमें भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें आजकल कैसा फील होता है, तो वो कहती है कि मुझे तो आजकल ठीक ही फील होता है, बस कभी कभी पास्ट की बातें याद आती हैं। बस शाम को थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है, जिस पर हियॉन कहता है कि आजकल साइकोलॉजिकल हेल्प लेना तो एक आम सी बात है, और अगर कोई डिप्रेशन आने वाला भी हुआ तो वो खत्म हो जाएगा। क्यों ना मैं तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट का नंबर दूं और तुम जाकर उससे मिलो, जिस पर जियोंग मान जाती है। उसके बाद हियॉन अपने ऑफिस चला जाता है और फिर जियोंग को थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। अभी वो सुकून से बैठना ही चाहती थी कि उसकी बेटी रोने लगती है, और जिसकी वजह से उसे अपनी बेटी को बाहर लेकर जाना पड़ता है। बाहर उसे एक शॉप ओनर की बेटी मिलती है जिसका आज जॉब का पहला दिन था। वो बहुत कॉन्फिडेंस हो के ऑफिस जा रही थी, जिसकी वजह से जियोंग को अपने ऑफिस के दिन याद आते हैं। जब वो ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि किम ने प्लानिंग टीम सेट कर ली है और उसमें कोई भी लड़की नहीं है, जबकि ऑफिस में कई लड़कियां ऐसी थीं जो लड़कों से ज्यादा डिजर्विंग थी। सभी को ये लग रहा था कि और किसी को प्लानिंग टीम में जगह मिले या ना मिले, जियोंग को तो जरूर मिलेगी क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड थी, लेकिन उसे भी नहीं चुना गया था। मिस किम की पर्सनालिटी काफी टफ थी क्योंकि वो अपनी चाइल्ड बर्थ के 1 महीने बाद ही ऑफिस आ गई थी और उनके बच्चे की देखभाल उनकी मॉम कर रही थी। ऑफिस के मेल एम्प्लॉय उससे बहुत डरते थे और साथ ही साथ कहते थे कि आखिर उसके हस्बैंड ने उसे कैसे झेल लिया, जिस पर एक फीमेल एम्प्लॉय कहती है किम ने अपने बच्चे को जन्म दिया और साथ ही साथ उसकी मॉम उसे पाल रही है, तो इसके हस्बैंड को उसके झेलने वाली बात कहाँ से आ गई। तभी एक लड़का कहता है कि अपनी वाइफ के पेरेंट्स के साथ लड़के के लिए रहना आसान नहीं होता, जबकि लड़की तो अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रह सकती है। इस पर कोई लड़कियों की तारीफ नहीं करता, बल्कि कहते हैं कि ये तो नॉर्मल बात है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में डॉक्टर जियांग आते हैं और उन्हें चाय सर्व करने के लिए लड़कियों को ही हायर किया जाता है। यहाँ मिस्टर यांग काम की बातों को छोड़कर मिस किम से उसके बेटे के बारे में ही बातें करने लगते हैं। यांग कहता है कि आप अपने बेटी की परवरिश क्यों नहीं कर रही। एक बच्चा बिगड़ जाता है अगर उसकी माँ उसकी परवरिश ना करे, क्योंकि नानी दादी भी वो परवरिश नहीं कर पाती जो एक माँ करती है। मिस किम उसकी बातें सुनकर काफी देर से हंसकर उसे जवाब दे रही थी, लेकिन आखिरकार जब उससे सहा नहीं जाता तो वो काफी रूड जवाब देती है, जिस पर मिस्टर यांग उसे कहते हैं आप बहुत टफ लेडी हैं, आपको तो एक मर्द होना चाहिए था, लगता है गलती से आप फीमेल बॉडी में आ गई हैं। जिस पर वो बातों को घुमाकर उसे दोबारा से मीटिंग की तरफ और काम की तरफ मबूल करवाती है। आगे मिस्टर किम जियोंग को अपने ऑफिस में बुलाकर उसके काम की काफी तारीफ करती है। जियोंग उनकी बातें सुनकर आखिर ये पूछने की हिम्मत कर ही लेती है कि अगर आपको मेरा काम इतना ही पसंद था तो आपने मुझे प्लानिंग टीम में क्यों नहीं लिया। वो हंसते हुए जवाब देती हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी है, बल्कि कंपनी को ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत थी जो 5 साल बिना किसी रुकावट के काम कर सकते हो, जबकि ये सब किसी फीमेल एम्प्लॉय के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि फीमेल पर घर और उसके बच्चों की जिम्मेदारी होती है। जिस पर जियोंग कहती है कि आप भी तो अपने बच्चे की पैदाइश के बाद अपना काम बखूबी कर रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जिस पर मिस किम कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है, समाज ने मुझे सक्सेसफुल वर्कर तो मान लिया, लेकिन साथ ही एक बुरी माँ और बुरी वाइफ का टैग भी दे दिया, जिससे अपने परिवार से ज्यादा अपने काम की फिक्र रहती है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर जियोंग अपने बेबी को चाइल्ड केयर फैसिलिटी में थोड़ी देर के लिए रखती है। तभी एक लेडी आकर उसे हैंग आउट के लिए कहती है, जिस पर वो कहती है कि मुझे काम है। तो वो उससे पूछ लेती है कि क्या तुम अभी भी ऑफिस में काम करती हो, क्योंकि हाउसवाइफ के पास तो कोई काम ही नहीं होता। तभी वो उनके साथ थोड़ी देर के लिए हैंग आउट के लिए चली जाती है। वो इसे कैफे में ले जाती है जहाँ पर लाइब्रेरी भी थी। अब इनकी बातों से पता चलता है कि सारी लेडीज काफी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इतनी सारी पढ़ाई का क्या फायदा जब उन्हें ये सब छोड़कर अपने घर में जाकर अपने बच्चों और अपने घर को ही संभालना है। इसके बाद वो जियोंग से उसकी लाइफ के बारे में पूछना चाहती हैं, तो वो उन्हें बताती है कि मैंने कोरियन लिटरेचर में मेजर कर रखी है। मैं हमेशा से एक राइटर बनना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने एक मार्केटिंग कंपनी में एक जॉब की। वहाँ से निकलने के बाद उसे एक शॉप के बाहर एक पार्ट टाइम जॉब का पंफलेट नजर आता है, जिसमें एक कैशियर की जॉब थी। जियोंग को वो एडवर्टाइजमेंट देखते एक लेडी नोट कर लेती है और उसे वो पंफलेट देती है। तभी जियोंग को उसकी एक ऑफिस फ्रेंड कॉल करके उसे अपने घर पर बुला लेती है। वो एक दूसरे से बातें करते हैं, तो वो जियोंग
जियोंग की बेटी को देखकर कहती है कि अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। फिर वो उसे बताती है कि मिस किम जॉब छोड़ रही हैं क्योंकि सोसाइटी उन्हें इससे ज़्यादा प्रमोशन नहीं दे सकती। बेशक वो बहुत ही ज़्यादा अपने काम में माहिर हैं, लेकिन अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उन्हें इससे ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो अपनी अलहदा से कंपनी स्टार्ट कर रही है। मैं तो कहती हूँ कि तुम उन्हें कॉल करके उन्हें अपनी जॉब की बात करो। जियोंग कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ, जबकि फुल टाइम एक बच्चे के रहते मैं कैसे जॉब कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हियोन भी जियोन को लेकर काफ़ी अपसेट था। वो कुछ डिप्रेशन के मुतालिक आर्टिकल्स पढ़ता है। वो तो ये भी पढ़ता है कि हो सकता है कि उस पर किसी भी आत्मा का साया हो। वो इससे मुतालिक अपने ऑफिस कोलीग से बात भी करता है। उसके दोस्त मजाक मजाक में कहते हैं कि कहीं वो नाइफ लेकर तुम्हारे पीछे न पड़ जाए, क्योंकि जाहिर है उसके अंदर उसकी आत्मा तो नहीं है, किसी और की आत्मा है। वो ये सब सोच सोच कर बहुत परेशान होता है। उसको ऐसे देखकर उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम जिम ज्वाइन कर लो, इस तरह तुम थोड़ा रिलैक्स फील करोगी। जिस पर वो कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। हाँ, मगर मैं सोच रही थी कि मैं बेकरी में पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ। जिस पर उसका शौहर उस पर चिल्लाने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर आधी रात को हियोन की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ शराब पी रही है। वो उससे कहता है कि तुम्हें तो शराब पसंद नहीं था, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि जियोन पर फिर से कोई दौरा पड़ रहा है और वो थोड़ी देर के लिए कोई और बन गई है। अपनी वाइफ को इस हालत में देखकर वो रोने लगता है। अब हियोन अपनी वाइफ को साइकियाट्रिस्ट का कार्ड देकर उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन वहां जाकर जब उसे पता चलता है कि उसने 3 टेस्ट करवाने होंगे और इन 3 टेस्ट की कॉस्ट बहुत ही महंगी पड़ रही है, तो वो वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन पास्ट की चीज़ें अभी भी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो ट्यूशन पढ़कर सफ़र कर रही होती है कि वहाँ पर एक लड़का उसे हिरास करता है, जिससे वो एक औरत की मदद से पीछा छुड़ाती है। ये सब वो अपने डैड से जब जिक्र करती है तो उसका डैड उल्टा उसी पर ही गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है इतने दूर पढ़ने जाने की, और ये यूनिफॉर्म तुमने इतनी छोटी क्यों पहनी है। लड़के तो ठरक झाड़ते ही हैं, हालांकि उसने प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इसके बाद सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हियोन की मॉम उससे मिलती है और उससे उस दिन अपनी बहू के बारे में बात करना चाहती थी। हियोन उसे बताता है कि इसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जिससे जियोन डिलीवरी के बाद से गुजर रही है। इसमें मूड कुछ ज्यादा ही स्विंग होता है, लंबे अरसे तक उदासी छाई रहती है और किसी को हार्म करने का दिल करता है। अपने आप आंसू आने लगते हैं और एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है। ये सब बातें सुनकर हियोन की मॉम को अपने बेटे पर तरस आता है कि वो एक पागल औरत के साथ रह रहा है। इधर जियोंग मिस किम से मिलती है और उससे अपनी जॉब की बात करती है। वो वैसे भी होनहार थी तो इसीलिए मिस किम उसको जॉब दे देती हैं। जियोंग ये खुशखबरी हियोन को सुनाती है। हियोन को लगता है कि अगर जियोन फुल टाइम काम करेगी तो उनकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। सीन दोबारा से पास में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हियोन के पेरेंट्स उन्हें बेबी करने के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन जियोन इस सब के लिए तैयार नहीं थी। जिस पर हियोन और उसके पेरेंट्स उसे भरोसा दिलाया था कि अगर एक दफ़ा बच्चा हो गया तो वो उसे पालने में उसकी मदद करेंगे, मगर अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जियोन को अपना काम धाम सारा कुछ छोड़कर अपने बच्चे को सारा टाइम देना पड़ रहा था। उसे तो अपनी सेहत की भी फिक्र नहीं थी और ना ही वो कोई रिलैक्स कर पा रही थी। इसीलिए वो जियोंग को काम करने की इजाज़त दे देता है, लेकिन बेबी का ख्याल रखने के लिए बेबी सिटर नहीं मिल रही थी। अब हियोंग एक कदम उठाता है कि वो अपने ऑफिस से 1 साल के लिए छुट्टी ले लेता है। वैसे भी कोरिया में पेरेंटल लीव के लिए उन्हें छुट्टी मिल जाती थी, क्योंकि अब फादर की ड्यूटी निभाने की बारी हियोंग की थी। आगे हियोन की मॉम कॉल करती है तो जियोन उसे सारी बात बता देती है कि अब मैं जॉब किया करूँगी और हियोन घर में रहकर बेबी की देखभाल किया करेगा। ये सुनकर हियोन की मॉम का पारा हाई हो जाता है। उनका कहना था कि 1 साल का ब्रेक लेने से उसके कैरियर पर बहुत फर्क पड़ेगा। वो जियोन की मॉम को कॉल करके उन्हें सुनाने लगती है कि आपने अपनी बेटी की यही परवरिश की है, वो अपनी बेटी की देखभाल के लिए काम को नहीं छोड़ सकती क्या, और उसके चक्कर में मेरे बेटे को 1 साल की छुट्टी लेनी पड़ रही है। वो पागल औरत कितना ही काम कर लेगी और कितना ही कमा लेगी। इधर हियोन की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है और वो अच्छे से काम भी कर सकती है और अच्छे से पैसे भी कमा सकती है। ये सब सुनकर जियोंग की मॉम जियोन के पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें काम करके खुशी मिल रही है तो तुम जाओ अपना काम करो और मैं तुम्हारी बेटी की देखभाल करूंगी। ये सब सुनकर जियोंग के अंदर उसकी नानी की आत्मा आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया है, तुम्हें तो टीचर बनना था, मगर
अपने बच्चों की वजह से तुमने अपना ये पैशन छोड़ दिया। जिस पर हियोन की मॉम उसे हक कर लेती है और ये सब चीजें हियोन भी देख रहा होता है और वो हिम्मत करके जियोन को उसकी एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर वो किसी और की तरह एक्ट कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि उसकी बॉडी को किसी ने पोजेस कर लिया है, तो वो उसे इसके बारे में बताता है और उससे साइकियाट्रिस्ट की मदद लेने के लिए कहता है। अपनी ऐसी वीडियो देखकर जियोन खुद हैरान हो जाती है। अगले दिन जियोन का भाई उसके लिए वही पेन लेकर आया था जिसे वो 10 साल से मांग रही थी और साथ ही उसके डैड ने उसके लिए कुछ चीजें भी भेजी थी, क्योंकि जियोन की मॉम ने घर जाकर ये क्लैश कर दिया था कि आप हमेशा अपने बेटों को ही बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और आप अपनी बेटियों को पूछते तक नहीं हैं। अब उसके डैड को भी एहसास होता है और वो अपने बेटों और बेटियों को एक ही नजर से देखना शुरू करता है। इधर जब जियोंग साइकियाट्रिस्ट से मिलती है तो उसे ये एहसास होता है कि उसने इतने साल चुपचाप जो सब कुछ बर्दाश्त किया, ये उसी सब का नतीजा है कि उसके अंदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से ये सब गुबार की तरह निकल रहा है। इसीलिए साइकियाट्रिस्ट उसे अपने मन की आवाज़ दबाने की बजाय सामने रखने की सलाह देती है। इसीलिए कैफ़े में जब उससे कोई जज करने की कोशिश करता है तो वो चुप रहने की बजाय उसे आगे से जवाब देती है और साथ ही वो किम की कंपनी में काम करना भी सही नहीं समझती, क्योंकि सबसे पहले वो खुद को हील करना चाहती है। जियोन के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई थी और वो उन सभी को लिखते लिखते एक पूरी किताब लिख डालती है। जो लिखना उसका हमेशा से सपना था और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप ऐसी और बहुत सी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।